شروع وعدہ لا شریک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، درود و سلام ان پر جن کے آنے سے دو جہاں ہوئے روشن۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون، آپ سب پر سلامتی ہو۔ میں ہوں سید اذان شاہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹیم مجرم کون اپنے ہر پروگرام میں معاشرے کی ایک کہانی لاتی ہے، کہانی درندگی کی، شفافیت کی اور رشتوں کی پامالی کی۔ آج ٹیم مجرم کون پہنچی ہے ملتان تھانہ حرم گیٹ کی حدود میں، جہاں ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک شخص جو کہ اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے گریہ کر رہا تھا، جہاں جا کر وہ رو رہا تھا، اور اگر ماں کے ساتھ ایفیلیشن کی بات کی جائے، ماں کے ساتھ تعلق کی بات کی جائے، ماں کے ساتھ لگاؤ کی بات کی جائے، تو وہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو جانتا نہ ہو، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، تو ہر شخص ہی اپنی ماں سے ایک لگاؤ رکھتا ہے۔ تو وہ شخص بھی اپنی ماں کی قبر پہ جا کے ایک گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا، اور وہاں اس شخص کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ چھریوں کے وار سے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ سارا واقعہ کیا ہے، تفصیلات کیا ہے، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے مجرم کون۔ جی تو ناظرین، اس وقت اس کیس کے مدعی اور مرنے والے کے بڑے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، تو انہی سے جانتے ہیں آخر یہ سارا واقعہ کیا تھا، آخر یہ قیامت گزری تو گزری کیسی، یہ کس واقعے کا پیش خیمہ ہے، اصل پس منظر کیا تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا یہ ایک واقعہ رونما ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام الہی بخش۔ الہی بخش صاحب، کیا تھا یہ سارا معاملہ؟ آپ کے بھائی کو کیوں قتل کیا گیا، جبکہ وہ شخص جو کہ ابتدائی اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی ماں کی قبر پہ گریہ کر رہا تھا، ماں سے لگاؤ کی وجہ سے وہاں رو رہا تھا، تو وہاں اس کو قتل کر دیا گیا ایک ایسی جگہ پر، تو سارا کیا واقعہ تھا؟ انہوں نے ان سے پیسے لینے تھے، انہوں نے پیسے مانگے، انہوں نے گالی نکال دی، اس نے بھی نکال دی۔ اس گالی کی وجہ سے وہ گتھم آپس ہو گئے۔ ایک بھائی نے اس کو بالوں کو پکڑا، ایک نے جفا ڈالا، پیچھے سے چھری پیچھے سے ماری۔ نہیں تو پیسے لینے تھے کہ کروڑوں روپے کا معاملہ تھا، کیا ایسا اتنا بڑا معاملہ تھا کہ قتل ہی کر دیا گیا؟ اور جس شخص کو قتل کر دیا گیا آپ پیسے کیسے مل سکتے ہیں؟ تو کتنے بڑے پیسوں کا معاملہ تھا؟ پیسے تھوڑے سے پیسے کو سنا ہے 1800 روپے لینا تھا انہیں۔ 1800 روپے کے لیے ایک انسانی جان، اور دینے بھی انہوں نے تھے۔ اچھا انہوں نے دینے تھے؟ انہوں نے دینے تھے۔ تو پھر وہاں وہ نہ دینے پڑے اس لیے اس بندے کو گالی نکال دی، اس نے بھی گالی نکال دی، یہ آپ گتھم گتھا گیا آپس میں۔ اس کے بعد میں انہوں نے نا وہ دو تھے، وہ بھی انہوں نے پکڑ کے مارا۔ کوئی کہہ رہا کوئی پیچھے سے کوئی ان کو لقبہ بھی دینا لگایا تھا، اور کوئی وہ اپنے ایف آئی آر میں نام لکھائے ان کے بھی وہ دو نامعلوم افراد ہیں۔ تو پولیس اچھا کام کر رہی ہے، پولیس پکڑ رہی ہے ان کو، تو پولیس بھی ہمارے ساتھ اچھا کوآپریٹ کر رہی ہے۔ نہیں تو یہ اصل میں معاملہ آپ کا بھائی کیا کرتا تھا؟ پیٹرول پمپ کا پلمبر تھا وہ۔ آپ کے بھائی پیٹرول پمپ کا پلمبر تھا، اور جو لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا یہ کوئی رشتہ دار تھے، کوئی جاننے والے تھے، کیا ایسا؟ کوئی رشتہ دار نہیں تھے، اسے کام سیکھتے تھے وہ۔ اچھا اسی کے شاگرد تھے، اپنے استاد کو قتل کیا؟ ہاں یہ نشہ کرتے تھے دونوں ہی۔ اچھا ہاں انہوں نے اس کو ایسے مارا اس لیے۔ تو جو وجہ آپ بتا رہے ہیں وہ صرف اور صرف وجہ اناد یہ تھی کہ وہ 1200 یا 1800 اتنے کے پیسوں کا لین دین کا اس نے لینے تھے ان سے۔ ٹھیک ہے، اس نے لینے تھے، وہ انہوں نے نہیں دینے تھے، اس لیے اس کو قتل کر دیا، گالی نکال دی، بعد میں مجھے مار دیا اس کو انہوں نے۔ تو جب آپ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، تو کوئی آپ کا بھائی اس وقت ہوش میں تھا یا وہ تو ہوش میں نہیں تھا؟ میں ادھر گیا تھا وہاں والدہ کی قبر پر، جب میں نے دیکھا تو میرے بھائی کو یہ ایسے کر رہے، جب میں نے دیکھا جا کے یہ بھاگے تھے تو وہ میرا بھائی نیچے گرا ہوا تھا، وہ موقع پہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ آپ کی جو بھائی والدہ کا انتقال وہ کب ہوا تھا؟ میری والدہ کا انتقال تقریباً آج سے کوئی تقریباً 10 سال ہو گئے میری والدہ کا انتقال کو۔ اچھا، لیکن اس کا لگاؤ اتنا تھا کہ وہ آج بھی اپنی قبر پہ والدہ کو بہت جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہاں جانا اس نے اکثر جب بھی ٹائم تو وہاں جاتا تھا وہ، اور وہیں یہ سارا واقعہ وہ سارا وہیں رہا۔ اسے والدہ قبر سے واپس آنا اس سائڈ پہ واقع ہوا ہے، یہاں پہ جہاں بھی لوگ کم آتے جاتے تھے۔ نہیں تو اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بھائی کو اس طرح مضروب کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تو آپ 15 کرتے ہیں، پھر پولیس آتی ہے، کیا پولیس کی؟ میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا، میں کیسے وہاں 15 کروں؟ وہاں محلے دار لوگوں نے کی 15 پہ کال کی ہے، 112 والوں لوگوں نے کال کی ہے، میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا، میں کیا کروں اب؟ تو پھر پولیس جب آتی ہے تو پولیس کس طریقے سے کارروائی کرتی ہے؟ آپ مطمئن ہیں پولیس کی؟ میرے ساتھ پولیس والے بہت اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھی طرح سارا کام کر رہے ہیں۔ یہ مجھے کو پکڑے بھی لیا انہوں نے، اور کچھ اور لوگوں کو بھی پکڑ رہے ہیں۔ یہ
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब एक मुद्दई होने के साथ साथ एक बड़ा भाई जिसने अपने एक जवान साला भाई को खो दिया, और मामला क्या सिर्फ 1200 या 1800 रुपए का लेन देन का मामला है, और कहा जाता है कि मरने वाले ने लेने थे और वो मतलब सिर्फ 1200-1800 रुपए की औकात की है। आज एक मज़दूर की दिहाड़ी 1200 से 1800 रुपए बनती है, तो सिर्फ उसके लिए तो आखिर हमारा अदम बर्दाश्त और कितनी जाने लेगा। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन इस वक्त ग़ुलाम मोहिउद्दीन कत्ल केस में उनकी छोटी बहन मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से मैं पहले कह चुका कि जो बहन भाई का ताल्लुक़ है, शायद इस दुनिया में जो रिश्ते हैं उनमें सबसे खूबसूरत तरीन रिश्तों में से ये एक रिश्ता माना जाता है। तो मैं उन्हीं से जानता हूँ कि वो आखिर अपने भाई को किस तरीके से देखती थी, क्योंकि छोटी जो बहन होती है वो भाइयों से एक लाड प्यार भी होता है, शरारतें भी होती हैं, और फिर वक्त 50 साल का जब गुजरा हो तो उसमें क्या कुछ यादें नहीं होंगी, क्या कुछ बातें नहीं होंगी, आखिर किस किस को बुलाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब आते थे ना इतना अच्छा इखलाक के साथ मिलते थे, मेरे बच्चों को बाहर लेकर जाना, वो चीज़ें दिलानी। मैं छोटी थी तो मेरे बड़ों जैसा मेरे साथ प्यार करते थे। मेरे बड़े भाई हमारे बाप के जगह है, तो हमने कहना कि भाई आप अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो आप कह सकते हैं, हमें भी मेरे भाई को भी। तो उसे जो कुछ भी कहना उन्हें कभी सर ऊपर किया ही नहीं था। मतलब भाई को ही बाप मानते थे, जी, बड़ी जी। बहन को माँ मानते थे, जी, जी। एक फरमा बरदार हर तरीके से, जिस तरीके से लोग गवाही दे रहे हैं उनकी कि भाई कभी कोई मामला ऐसा नहीं हुआ कि जी जिसकी वजह हमने से। तो कभी ऐसा मंजर देखा ही नहीं था। अब हमें इंसाफ चाहिए, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। उन्होंने कभी किसी के साथ बुरी बात की ही नहीं थी। अगर किसी की बात होती थी तो जल्दी से अंदर जाता था, उनकी बात सुलझाने की कोशिश करता था कि उनकी बात सुलझ जाए। मैंने तो यहाँ तक ये सुना कि बहुत सारे मामलात में वो कहते थे पैसे मेरे से ले लो लेकिन लड़ो नहीं। आज इसी मामले में मतलब 1200 से 1800 के मामले में अपनी जान दे बैठा वो शख्स। ये हमें पता ही नहीं था कि ऐसे होना है, हमने घर से जाने नहीं देना था। आखिरी दफ़ा कब मुलाकात हुई आपकी उनसे? मेरे भतीजे की शादी थी, मैं आई थी, मेरे भाई कहने लगे कि मैं ग़ुलाम मोहिउद्दीन को बुला कर लाता, इसी तरह तुम जाना नहीं है। मैंने कहा भाई मैं इधर ही हूँ, आप बुलवा लाएँ। फिर आया है, मेरे साथ बैठा है, मैं सूट लेकर आई। मैंने कहा भाई ये सिलाई करवा लेना आप, पकड़ के मुझसे रख लिए। बस यही आखिरी मरतबा, यही मेरी बेटी की शादी थी, उधर आए, मैंने साथ लेकर उन्हें मूवी बनाई। मैंने कहा भाई मेरे साथ, ये नहीं पता ये आखिरी मूवी बन रही। चलो आपको सब्र दे। क्या अपील करना चाहेंगी रियासत से, वज़ीर आला हमें पंजाब से? इंसाफ चाहिए, मेरे भाई की किसी से दुश्मनी नहीं थी। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब वही ख़ानदान हो, बहन हो, भाई हो, वो एक ही अपील करता नज़र आता है, कि फरियाद करता नज़र आता है, और हाथ जोड़कर वो रियासत से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डिमांड करता है कि खुदारा हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन इस वक्त उसकी मोहिउद्दीन कत्ल केस में ग़ुलाम मोहिउद्दीन की बहन मेरे साथ मौजूद है, और जो बहन भाई का रिश्ता होता है, मेरा ख़्याल है कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर किसी रिश्ते को गर्दाना जाता है या माना जाता है वो ये बहन भाई का रिश्ता होता है। तो वो 50 साल जिस तरीके से उस शख्स के गुज़रे, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी यादें नहीं होंगी, कौन कौन सी ऐसी बातें नहीं होंगी कि आज जिन्हें भुलाना मुश्किल तो क्या, मेरा ख़्याल है कि नामुमकिन होगा। तो मैं उन्हीं से जानता हूँ कि अपने भाई के बारे में वो क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या सारा ये मामला लगता है, कैसा था आपका भाई? मेरा भाई बहुत चंगा, कभी किसी ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਂ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। आपका छोटा भाई था? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ 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 ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਭਾਈ। मतलब फरमा बरदार, ताबेदार बहुत मतलब उससे तो अंदाज़ा हो जाता है कि 10 साल मतलब वालदा के इंतकाल को हो चुके हैं, लेकिन वो आज तक उनकी कब्र पे जाया करता था। हाँ जी। और एक एफिलिएशन थी, एक मोहब्बत थी, तो इसी से पता चल जाता है कि वो एक मोहब्बत करने वाला इंसान था। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਖਤੀ ਲਵਾਈ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਪਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਥ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ,
ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ, ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਆ ਨਿਕਲੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਜਿਆ ਕਰ, ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਬਸ। मतलब कभी कोई गल नहीं की थी कि मैं परेशान हाँ, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੈ? ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਪਲੰਬਰ ਸੀ, ਬੈਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। मतलब एक अच्छा हुनर है, बहुत कम लोगों के पास ये हुनर होता है। हाँ तो जी। मतलब जो लोग ये काम करते हैं वो अच्छे वेल ऑफ होते हैं, तो हाँ मतलब जी। उन्हें कोई कमी नहीं होती, एक अच्छी मजदूरी वो बना लेते हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या मामला लगा आपको कि जिसकी वजह से इतना इंतहाई कदम पे मतलब आपके भाई को कत्ल कर दिया गया? ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਸਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ, ਦੇਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मकतूल के चचा मेरे साथ मौजूद हैं। जब बाप नहीं होते तो चचा ताया वो बाप की जगह होते हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर वो किस तरीके से जानते थे मकतूल को, बचपन से उन्होंने देखा, बचपन से उन्होंने पाला होगा। तो और जो चचा भतीजे का रिश्ता होता है वो भी वैसे भी बहुत ही उनसियत वाला होता है, प्यार वाला होता है। तो उन्हीं से जानते हैं गुलाम मोहिउद्दीन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे हजरत कि क्या मतलब जिस तरीके से आपने तो बचपन से जानते होंगे, बिल्कुल, आपके वो तो सामने आपकी वो बात पैदा सही है। हुआ। देखो भी हमने बचपन से देखा माशा, थोड़ी कमी भी तो हर इंसान में होती है ना, बच्चे भी होते हैं, बड़े में। हमें अपने अभी हमें याद है कि हमारे क्या क्या खामियाँ हैं, इकरार करना चाहिए बिल्कुल ना ऐसे। ये। हाँ जी। तो ऐसे ही मामला चलते रहते हैं, बस मामला थोड़ा बस ऐसे ही, बस को थोड़ा सा वो अपना घर में अपना सबसे छोटा था इनसे, अलाई वक्त से। हाँ जी। तो बस मामला वो अपना अकेला ही चलाता रहा। तो मामला बाहर के मामला तो हमें नहीं पता था कि किन किन के साथ उसके दोस्ताना माहौल थे। वो दोस्ताना माहौल में भी अपना उनका ये मामला जाम हुआ उनका। 10 साल पहले वालदा का इंतकाल होता है हाँ जी, इसके। हाँ जी। तो वालिद कब, वालिद हयात हैं इसके? नहीं, वालिद पहले पहले बहुत हो गया। अच्छा, मतलब वालदा से भी हाँ, पहले हाँ जी, उनका हाँ इंतकाल जी, हाँ हो जी, गया हाँ था। जी। तो शादी क्यों नहीं की है आपने अपने भतीजे की? बस वो उसकी अपनी मर्जी नहीं थी। अच्छा, मतलब वो जब करना भी ही नहीं कहते थे चाहता। करना ही नहीं चाहता था। जब करने नहीं चाहता था जी, जब पूछते कहना नहीं मैं अकेला भी मैंने शादी नहीं करनी, बस मेरा ऐसे ही हाल है। मतलब मैं ठीक हूँ, हाँ ठीक हूँ। मैं राजी हूँ हाँ अपनी जी, हाँ लाइफ जी, से। हाँ जी। तो ये सारा मामला क्या हुआ सर? मतलब एक अच्छा कमाने वाला शख्स, जिस तरीके से उसके बारे में बताया जाता है, जो हुनर उसके पास था वो बहुत कम लोग, मतलब यूनिक सा हुनर है, हर हाँ, आदमी हाँ। ये काम नहीं करता। जी, जी, जी। लेकिन वो जो काम कर रहा था उसमें कमाई भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। जी, फिर जी। आखिर लोगों ने बताया कि मतलब उसने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था। ये कोई तो बढ़ गया, कोई जैसे ऐसा जाता वाकया मुझ से नहीं। जाता हाँ। मुझ से जाता। हाँ तो जी। फिर क्या, कहाँ ऐसी क्या पता वजह नहीं, हुई? अल्लाह जाने बाहर की मेजोरिटी अब उसका साथ क्या उन्हें दोस्त का तो हमें पता नहीं था। खासकर मुझे तो मैं चचा उसका अपना इसके वाला जो उनसे ना मेरे महमूदा भाई है। अच्छा, मेरा साथ वाला ही मकान है। सही। हाँ जी। तो ऐसे ही बस इस बात से कई बच्चे मेरे अपने बच्चे अब मुझसे पूछो भाई अपना ना किया तुम क्या करते कहाँ जाते हो, ठीक है जी हम जा रहे हैं आ रहे हैं बस। लेकिन एक चीज़ होता है ना, एक बुरा शख्स होता है, उसकी शिकायत भी आती है, 10 बंदे बोलने वाले, एक आदमी वो है कि जो कि सब उसके बारे में कह रहे हैं कि नहीं लड़ाई झगड़े वाला नहीं था, नहीं, ये तो कभी बात उसका कोई ऐसा ये मामला तो नहीं हुआ। बात सच है जी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी, ये तो बात सच है। क्या अपील करेंगे रियासत से? रियासत अपील करेंगे अपना वज़ीर पंजाब से, अपना वज़ीर अपना शबाशी से हम ये अपील है, ये गरीब घराना है, वो बस अपना छोटा भाई था इनका, जैसे भी है अपना घर का फ़र्ज था, आपको उसके प्यार मोहब्बत था। हाँ जी, अब उनकी बहनें भी हैं माशाल्लाह, अब उनके भतीजे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं और भी हैं। सभी की अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाता। अच्छा, अक्सर ऐसे केसेस में देखा जाता है कि जहाँ मतलब उसकी कोई वाइफ नहीं है, मतलब बच्चे नहीं हैं, हाँ जी, औलाद हाँ जी, नहीं हाँ जी, है, हाँ जी। तो ऐसे मामलात में प्रेशर आता है कि भाई माफ़ कर दिया जाए, कुछ ले दे के, तो आप माफ़ करेंगे? नहीं,
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहाँ ज़ख़म लगा हो और वो ज़ख़म भी इतना गहरा हो कि जहाँ 50 साल की रफ़ाकत हो तो उसको भुला देना मेरा ख़्याल है वाकई नामुमकिन है। तो यहाँ वो भी रियासत से यही अपील कर रहे हैं कि खुदारा हमें इंसाफ दिया। जी तो नाज़रीन ग़ुलाम मोहिउद्दीन कत्ल केस में जो इस वक्त शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो मोहल्लेदार हैं। तो जहाँ किसी के बारे में हमारे यहाँ माशरे में ये होता है कि किसी के बारे में जब जानना हो तो मतलब किसी उसके रिश्तेदार से भी जब पता चल जाए तो इन द एंड मोहल्ले से ज़रूर पता किया जाता है, फिर उसके करैक्टर का अंदाज़ा लगाया जाता है कि आखिर वो शख्स कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ राशिद अली। राशिद साहब क्या कहेंगे जो ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब थे वो कैसा इंसान था? बहुत अच्छा इंसान था, ये इखलाकन बहुत अच्छा इंसान था। यानी कि मेहनत मजदूरी करने वाला था। ये पेट्रोल पंप की जो टैंकी बाडियाँ होती हैं वो यानी कि काम करते थे, वो बनाते थे हाँ फिटिंग वगैरह फिटिंग सारा? फुटिंग यानी कि बाहर भी जाते हैं ना बलूचिस्तान सही, में। मतलब जहाँ से भी कोयटा ऑर्डर में आया, आर्डर आया यानी कि वहाँ पे जाते थे। तो कैसा पाया? मतलब आप मोहल्लेदार हैं तो लाजमी सी बहुत बात है यानी कि वो हर दूसरे अपना दिन हर- मुलाकात भी होती हाँ जी, हाँ होगी, जी। इस्लाम दुआ भी होती आते होगी। जाते यानी कि दुआ सलाम हाँ। होती थी, इज़्ज़त व एहतराम के साथ सबके साथ। तो ये सारा वाक़या क्या हुआ? मतलब आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में जब ये इतला मिलती है कि ग़ुलाम मोहिउद्दीन को कत्ल कर दिया गया और इस तरीके से कत्ल किया गया तो कैसा मतलब? पहले तो यानी कि वो पता नहीं चल रहा था कि ये यानी कि ये वाक़या ऐसे हुआ है। मतलब यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आ रहा कैसे था। कि भाई हाँ एक जी, हाँ शरीफ जी। आदमी और वो भी मतलब अपनी माँ की कब्र पे मौजूद था, हाँ जी, हाँ वहाँ जी, हाँ वो गिरिया करने गया था, वो रोने गया था, अपनी माँ से दिल के हाल बयान करने हाँ जी, गया हाँ था, जी। उसके लिए फातिहा करने गया था, उस जगह पर मतलब कत्ल कर दिया जाता। हाँ जी क्या अपील करेंगे रियासत से? भाई, जिन्होंने ये अपना ये उनके साथ ये काम किया, कत्ल किया जिन्होंने, उनको कैफिर गिरफ्तार तो यानी कि पहुँचाया जाए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि हर आंख अश्क पार देखी और हर शख्स ने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही अपील की कि हमें इंसाफ चाहिए। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन ग़ुलाम मोहिउद्दीन कत्ल केस में इस वक्त उनके एक बड़े कज़न क्या मतलब तायाजाद भाई मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर ग़ुलाम मोहिउद्दीन एक कैसा शख्स था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान साहब आखिर क्या ऐसा मामला, मतलब आप बड़े हैं तो आप बचपन से उसे जानते होंगे। ये देखो जो किसी से के साथ नहीं, कोई ना गाली गलौज किसी के साथ नहीं करता था, इधर ना बाहर ना इधर। तो शरीफ आदमी था वो, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता था। सर यही हुआ, भाई सोच में पता चला, भाई ने बताया भी रमज़ान जल्दी आओ, भाई उधर ज़ख्मी हो गया, जहाँ लड़ाई हो गई उसकी। हम सारे चल गए इधर, कुछ सारे उधर ही उधर गए तो वो ख़त्म होया था, बहुत हो गया था उसका। क्या मतलब आपने लाजमी सी बात है बचपन से उसे देखा होगा, जिस तरीके से आप खुद शाहिद हैं, आप गवाही दे रहे हैं कि वो एक अच्छा इंसान था, किसी से हाँ, लड़ाई बहुत झगड़े में बहुत वो अच्छा मतलब किसी इंसान था वो। क्या शादीशुदा था? शादीशुदा नहीं था वो। अच्छा, कितनी उम्र कितनी थी उसकी? उम्र तकरीबन 50 के करीब थी। मतलब शादी नहीं की थी? शादी नहीं की, उसने की नहीं शादी, उसने लेकिन मैं नहीं शादी करता। अच्छा, और वालदा ने बड़ी कोशिश की है लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं करता। वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी क्योंकि जब कत्ल के वक्त वो मतलब अपनी वालदा की कब्र पे हाँ जी, वो तो जाता रहता था वो उधर, बस वो जिस टाइम वो कहते ना कि मौत आनी थी आ गई बस। क्या लगता है क्या वजह बनी इतनी बड़ी कि बजाय ना क्या बन गई ऐसी कि मतलब कत्ल ही कर कत्ल दिया ही गया कर कि दिया इंसानी जाता है। जान को, मतलब कहा जा रहा है कि 1200 से 1800 रुपए का हाँ, कोई लेन देन था और लेने भी इस शख्स ने थे, हाँ जी, मतलब हाँ जी। मोहिउद्दीन ने लेने थे हाँ जिसको जी। कत्ल कर दिया गया। तो जल्द। इतनी मतलब हमारा इतना अदम बर्दाश्त बढ़ गया है कि मतलब हम छोटे बर्दाश्त से छोटे से बाहर। मामले पर मतलब लोगों को अब कत्लो गारत करेंगे। बर्दाश्त से बाहर कर देते ना जो, बस इसलिए बस वो तो कि वो कहते ना कि मौत आनी थी आ गई उसकी वजह। लेकिन वो आदमी शरीफ आदमी था, जिससे मर्जी पता कर लो, बाहर से कर लो, इधर से कर लो, आदमी शरीफ था वो, किसी के साथ मतलब अपने काम से बदतमीजी काम नहीं। रखने वाला आदमी था, हाँ। अपने काम पे जाता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिक्शा भी चलाता रहा, मजदूरी करता रहा, रिक्शे के बाद फिर वो प्लम्बरी वाला काम शुरू कर दिया उसने। लेकिन आप बंदा शरीफ आदमी है, नया शरीफ आदमी। क्या अपील करेंगे रियासत से? देखो जी, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा ही करेंगे इनको। मतलब आप मुतमईन हैं पुलिस की कार्रवाई से, जिस तरीके से इंशाल्लाह, जब आपके इंशाल्लाह। भाई का यूँ कत्ल हुआ तो इंशाल्लाह फिर मुतमिन, फाइट की अल्लाह पाक बेहतरी करेगा गई। इंशाल्लाह। मतलब पुलिस ने आपके मुतमिन। मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर हाँ चुकी जी, हाँ है। जी। लेकिन इंशाल्लाह मुतमिन तो है, इंशाल्लाह भी अच्छा काम करेंगे तो बेहतरी होगी।
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ वो होती है कि मरने वाले की गवाही उसके लोग दें, मोहल्लेदार दें, मतलब रिश्तेदार दें। तो वो शाहिद हैं कि वो अपने काम से काम रखने वाला एक शख्स था। अपने काम से काम रखना, अपने काम पे जाना, काम से वापस आना, अपने घर में रहना, मतलब किसी से कभी उसकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। ये जो शख्स जिन्होंने कत्ल किया है, कहा जाता है कि उसी के शागिर्द थे, और जहाँ तक वो उस्ताद का रुतबा है जो कि वो उसे बाप के रुतबे के बराबर कहा जाता है। लेकिन हम इखलाकी गिरावट पर कितने गिर चुके हैं कि एक वही शख्स अपने उस जिसको वो उस्ताद कहा करते थे, जिससे उन्होंने काम सीखा था, उसी के कत्ल के वो ज़िम्मेदार बन गए। तो ये सारा जो मामला है, जितनी मतलब अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है इस माशरे में, मेरा ख़्याल है कि कहीं ना कहीं कोई कमी ऐसी रह गई है जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे पहुँचे हैं। जी तो नाज़रीन, मोहिउद्दीन कत्ल केस में उनके चचाज़ाद भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो इस सारे मामले में क्या जानते हैं और वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। मुनीर साहब, मतलब चचाज़ाद भाई होना, मतलब कज़न, ये एक ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ दोस्ती भी होती है, मतलब एक रिश्तेदारी तो है ही है, मतलब बचपन से इंसान एक दूसरे को जानता होता है। तो कैसा पाया आपने मोहिउद्दीन को? ग़ुलाम मोहिउद्दीन बहुत अच्छे इंसान थे। मेरा तो उनके साथ बचपन गुजरा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इन्होंने कत्ल किया है, ज़्यादती की है, मगर हमारा तो बचपन गुजरा है। उनके साथ कभी ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने किसी के साथ ज़्यादती की हो। तो बाकी जैसे भी इंसान थे, अच्छे थे। हमारा बचपन जैसे गुजरा है हम जानते हैं। उसने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की। ये पहली दफ़ा वाक़या हुआ है कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है या किस तरह का मामला हुआ है। मतलब ज़्यादा पहली मुझे ही लड़ाई में? हाँ जी, मैं घर नहीं था, मैं तो काम पे गया हुआ था, वापसी पे आया ना मैं, तो मुझे पता चला कि ये मामला हुआ है कि उसको कत्ल कर दिया गया। तो जैसे इन्होंने बताया कि वो वहाँ कॉल हुई है, 15 पे बुलाया, तो सब कुछ हुआ है। तो दुख बहुत हुआ है मुझे। भाई था हमारा, जैसे भी हमारी लाइफ गुजरी है, मगर इस तरह उनको करना नहीं चाहिए था। एक पैसों की खातिर उन्होंने ये काम किया। और पैसे भी कोई बड़ी रकम नहीं थी। हाँ जी। 1200 से 1800, कुछ लोग कहते हैं 1200 रुपये थे, कुछ लोग कहते थे 1800 रुपये। अच्छा, वो 1200 थे या 1800 थे, तो लेनदार भी यही था शख्स जिसको जी। कत्ल कर दिया गया। जी बिल्कुल, इन्होंने लेने थे, देने नहीं थे, लेने थे। तो लेने के मामले में अब पैसों की खातिर ये काम कर दिया जाए तो ये पैसों का कोई मामला लेन देन का होता रहता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। तो लिहाजा मैं तो यही अपील करूँगा कि कौन लोग थे वो, कौन लोग थे जिन्होंने मतलब इतनी सी मामूली सी बात पर, और मतलब आप टाइम ले सकते हैं उस शख्स से कि भाई ठीक है, जहाँ तक बताया जा रहा है कि वो उसके इंतहाई जानने वाले लोग थे, उसके शागिर्द थे जो इन्होंने उसको मारा, मतलब अपने उस्ताद को ही कत्ल कर दिया 1200-1800 रुपये ताकि ना देने पड़े। वो टाइम लिया जा सकता था, किसी मतलब घर आके बात की जा सकती थी कि हमें टाइम दिला दिया जाए। मतलब कोई भी इंतहाई कदम उठाने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था। बेहिसी की बात है सारी। बात तो ये है कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, जो मर जाए उसने कौन सा दोबारा आना है। तो बात ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादती की है, ऐसे करना नहीं चाहिए था। हमें तो इंसाफ चाहिए। हम तो इंसाफ की खातिर दर बदर धक्के खाते फिर रहे हैं, कभी थाने कचहरी इधर उधर। तो बाकी हमें इंसाफ की बड़ी उम्मीद है। हमारे साथ कॉपरेट तो कर रही है पुलिस, तो उम्मीद तो बहुत है, हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो आपका भी ताउन चाहिए हमें, मेहरबानी होगी आपका, इंसाफ चाहिए हमें। क्या लगता है आपको, मतलब अक्सर ऐसे मामलात में देखते हैं कि जहां कत्ल हो जाता है तो मुद्दई अक्सर माफ़ कर देते हैं, माफ़ तो नहीं करेंगे। जिस तरीके से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया है, तो आप पर कोई अभी प्रेशर है या फिर कोई, अगर ऐसा मामला होता है तो माफ़ तो नहीं करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। अगर कत्ल हुआ तो कत्ल का बदला चाहिए ना हमें। कौन का बदला? हम क्यों माफ़ करेंगे? अगर तो कुछ और होता तो चलो छोटा मोटा मामला होता तो दरगुजर कर लेते। ये तो कत्ल का मामला है, ये हम माफ़ नहीं करेंगे। क्या अपील करेंगे रियासत से? रियासत से यही अपील है कि आप मेहरबानी करें, हमें इंसाफ दिलाएं। हम तो कोशिश कर रहे हैं, धक्के खाते फिर रहे जिस तरह भी हैं, आते जाते फिर रहे हैं। हमारे भाई भी कॉपरेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, परेशान हैं। तो हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी यही उम्मीद है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब एक आम आदमी, उसकी रिक्वेस्ट भी एक ही होती है, फरियाद भी एक ही होती है। वो ये कहता है कि खुदारा हमें इंसाफ दिलाया जाए। और इंसाफ मैं फिर हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि इंसाफ वो है कि जो फौरी तौर पर उसकी दहलीज़ पे दिलवा दिया जाए। तो रियासत की मेरा ख्याल है कि ज़िम्मेदारी है कि अपने लोगों को इंसाफ की फरावानी हो, एक तो जल्द, और ऊपर से उनकी दहलीज़ पर उन्हें ख्वार ना होना पड़े, उन्हें चक्कर ना लगाने पड़े, उन्हें धक्के ना खाने पड़े। देखते रहिए मुजरिम कौन।
अच्छा, पुलिस कार्रवाई से मुतमईन है कि जब ये सारे मामले के बाद जिस तरीके से पुलिस ने आपके मुलज़िमान को गिरफ़्तार किया है तो उसकी कार्रवाई से मुतमईन है? हाँ जी। क्या अपील करना चाहेंगी? आप ख़ुद भी एक खातून हैं और इस वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो भी एक खातून हैं, तो वो ख़वातीन के साथ कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा ताल्लुक़ रखती हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगी? यही कहूँगी सानू इंसाफ, मेरे भाई मार रहा है। अल्लाह आपको सब्र दे। अक्सर देखने में आता है कि ऐसे मामलात में मतलब जब कत्ल हो जाता है तो, और जिस शख्स की मतलब इसमें पता चला उन्होंने शादी नहीं की थी आपके भाई ने, तो इसलिए उनकी ना कोई वाइफ है ना कोई औलाद है, तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि मतलब माफ़ कर देते हैं मुद्दई, तो माफ़ तो नहीं करेंगे? नहीं ऐसा माफ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक बहन का दुख तो अक्सर तो दुख वही जानती है और उसका अल्लाह जानता है, बाकी जो हमारा मुआशरा किस हद तक ज़ालिम होता जा रहा है, किस हद तक मतलब अदम बर्दाश्त जो है कि वो ख़त्म होती जा रही है, कि क्या मामला क्या सिर्फ 1200, चले मान लेते हैं 1800 रुपये, 1 मिनट के लिए हम सिर्फ सोच लेते हैं कि ये 18 लाख होते तो क्या 18 लाख की वजह से किसी इंसान को कत्ल करने का कोई हक़ मिलता है? बैठ सकते थे, बात की जा सकती थी और शायद ये मामला बहुत आसानी से हल हो जाता, लेकिन आज मतलब 2 घर, बल्कि 2 नहीं कई घर इस सिर्फ एक मामले की, एक अदम बर्दाश्त की वजह से तबाह बर्बाद हो गए। जी तो नाज़रीन, ग़ुलाम मोहिउद्दीन कत्ल केस में इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो ग़ुलाम मोहिउद्दीन के एक दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, मोहल्लेदार भी हैं। तो दोस्ती और मोहल्लेदारी जब दोनों एक ही जगह पर हों तो वो मेरा ख़्याल है कि वो बचपन से लेके और अब तक जिस तरह से बताया जा रहा है कि 50 साल उस शख्स की उम्र थी, तो मेरा ख़्याल है कि उसमें बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी यादें होंगी, बहुत सारे राज होंगे, बहुत सारे उसमें मतलब ऐसी चीज़ें होंगी कि जिसको सोच के सिर्फ मुस्कुराहट आती होगी, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जहाँ तलखियाँ भी होंगी। तो 50 साल में क्या कुछ नहीं गुजरा होगा, तो ये सब कुछ उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? हाजी आशिक हुसैन अंसारी जी, काउंसलर हूँ यहाँ का। आशिक साहब, क्या कहेंगे ये ग़ुलाम मोहिउद्दीन के बारे में? ग़ुलाम मोहिउद्दीन बहुत अच्छे बंदे थे और उन्होंने कभी भी किसी से कोई जाति नहीं की। फिर अपनी ये क्या लाइफ जो मामला थी ना, हुआ? ये बहुत सारा अच्छी। क्या सारा ये मामला हुआ सर? ये पता नहीं, समझ नहीं लगी क्या हुआ ये, मगर उन्होंने ज़िंदगी जो सी है ना अच्छी निभाई है। सब बहुत, हर बंदा यही कहता है भाई अच्छा बंदा था, तो है भी अच्छा था। कभी किसी से भी कोई ऐसा नहीं भाई कोई मसला होता है, कोई भाई कभी से जाति की और नहीं की उसने। जो शख्स जो लोग मारने वाले हैं वो भी इधर इलाके के ही हैं? हाँ, इधर वो पीछे रहते हैं। हाँ, तो वो क्या ऐसा मामला, और कहा जाता है कि वो उसी के शागिर्द थे? बस ये तो उनको पता होगा ना जी, हम तो उनको जानते हैं, वो पहले भी करप्ट थे। अच्छा, हाँ। फिर क्या कहेंगे ग़ुलाम मोहिउद्दीन के बारे में कि मतलब इसकी ज़िंदगी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी हाँ, कोई कभी झगड़ा वो- नहीं, कि बहुत मतलब अच्छे तरीके से वो अच्छे लोग, तरीके हर से, आदमी हाँ। उसकी तारीफ़ कर रहा है, वो हाँ कहते नहीं जी। ऐसा तो मामला ही नहीं था। हाँ, अभी ऐसा 50 मामला- सालों में कभी कोई शिकायत नहीं आई घर, कभी बिल्कुल कोई नहीं ऐसा आई। मामला नहीं हुआ। तो एक ही दफ़ा में, और जो मामला बताया जा रहा है वो 1200 से 1800 रुपये का सिर्फ लेन देन का मामला है, उस पर मतलब किस हद तक हम जालिम हो गए हैं बस कि मतलब एक शख्स की जान के लिए। समझ नहीं लगती भी क्यों ऐसा, क्यों हुआ, क्या है ये, होना नहीं चाहिए था, ये गलत किया है उन्होंने। आपको क्या लगता है मुलजिमान को वाकई करार, वाकई सज़ा मिलनी सज़ा चाहिए? तो मिलनी ताकि चाहिए मतलब जी। आपके इलाके में भी और दूसरे लोगों को भी जो देख रहे हैं वो इबरत का निशान बन सके, होना कोई चाहिए जी। दोबारा सोच भी ना सके ऐसा वाक़या करने हाँ, का। होना भी चाहिए जी, ज़रूरी होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए जी भाईजान। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ मतलब अगर बात की जाए कि बहन भाइयों की, वो उसके अलावा कज़न रिश्तेदारों की, अगर उससे भी आगे जाए तो दोस्त यारों की, तो सभी उस शख्स की तारीफ़ करते नज़र आए, सभी गवाही देते नज़र आए कि वो शख्स कभी किसी के साथ, कोई उसके साथ ऐसे ऊंच नीच कोई मामला कभी नहीं हुआ, तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी। और सिर्फ 1200 से 1800 के मामले पर एक इतना अदम बर्दाश्त बढ़ गया हमारे इस माशरे में कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। तो नाज़रीन, हरम गेट, थाना हरम गेट की हदूद में एक अंदरनाक वाक़या पेश आता है, जहाँ एक शख्स अपनी माँ की कब्र पे, जो कि माँ के साथ एक उनसियत होती है, माँ के साथ एक लगाव होता है, वो मेरा ख्याल है
ہر آدمی ہی جانتا ہے, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے بڑا ہو, چاہے وہ بوڑھا ہو, تو وہ اس کی قبر پہ روزانہ جب جاتا ہے تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ماں کی قبر پہ جا کر وہاں سے لپٹ کر رو رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں. آخر یہ کیا واقعہ تھا اور یہ کیسے مطلب رونما ہوا, پولیس کو اس کی اطلاع کس طرح سے ملتی ہے, پولیس اس کیس کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہے, تو اس کا جاننے کے لیے میرے ساتھ اس وقت ڈی ایس پی کبیر منیز صاحب موجود ہیں, تو ان سے ہی جانتے ہیں کہ آخر یہ ساری کارروائی کیا تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مورخہ 2 مارچ صبح 15 پر اطلاع ملی کہ ایک شخص قبرستان بی بی پاک دامن قتل ہو گیا ہے. تو ہم جب موقع پر پہنچے تو ایک شخص غلام محی الدین قبر پر لیٹا ہوا تھا, جس کا زخم چیک کیا گیا تو اس کی کمر میں ایک زخم تھا. تو متعلقہ عملہ آیا اور اسے ہم نے پوسٹ مارٹم کرایا اور مقدمہ نمبر 58/26 درج کرایا. تو ہم نے اس کے ریٹ کیے تو 2 ملزم, یہ زہیب عرف فوجی, محمد فیصل عرف سپاہی ہیں, جو کہ اسی گرد و نواح کے رہائشی تھے, اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے, جو کہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں, اور باقی جو طاہر ملزم ہیں اس کی گرفتاری کے لیے ریڈ کر رہے ہیں. اچھا سر, جو ابتدائی تفتیش کی پولیس نے اس پہ کیا آیا کہ ایسے بندے کو مطلب ایک قبرستان میں جہاں وہ اپنی ماں کی قبر پہ وہ گریا کر رہا تھا اور وہاں قتل کر دینا, تو کس چیز کا پیش خیمہ لگتا ہے, کیا تفتیش میں یہ جو دوران تفتیش جو ہے یہ لین دین کا ان کا آپس میں معاملہ تھا. تو انہوں نے پھر جو ہے نا تیش میں آ کر اسے چھری کے بعد کر کے اسے قتل کر دیا. سر کیا لگتا ہے آپ کو کہ معاشرہ اتنا زیادہ بگاڑ میں کیوں جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر جو اس کا اختتام ہوتا ہے وہ ایک خونی کھیل پہ ہو رہا ہے, تو اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ یہ معاشرے کی جو اب تربیت ہے وہ اس سطح سے نہیں ہو رہی کہ ہماری قوت برداشت جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے. جو بھی کسی کے ذہن میں آتا ہے وہ اپنا وہ کر گزرتا ہے. جو معاشرہ مطلب یہ عدم برداشت ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن بڑھتا جا رہا ہے کہ پہلے مطلب ہم دیکھتے تھے کہ کوئی بھی معاملہ ہو جاتا تھا تو وہ علاقے کی ایک پنچایت اکٹھ لگایا جاتا تھا اور اس میں وہ رفع دفع کر لیا جاتا تھا, کسی کو مطلب پنشمنٹ دی جاتی تھی, کچھ بھی ہوتا تھا, مطلب تھانوں میں بھی بہت بڑے معاملات آتے تھے. تو سر کیا لگتا ہے کہاں کمی آ گئی, کہاں مطلب وہ تربیت میں کمی ہے, وہ اسکولنگ ویسی نہیں رہی, یا مطلب ہمارا کہاں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کمی ہے جس کی وجہ سے مطلب ہمارا معاشرہ اس حد تک اخلاقی اس میں جو ہے نا جو ہمارے پرانے لوگ تھے وہ اس میں دلچسپی بھی رکھتے تھے, وقت بھی دیتے تھے, ٹائم بھی اپنا خرچ کرتے تھے, اور لوگوں کو دلچسپی, جو ہماری نئی پود آ رہی ہے اس کو جو ہے نا اس بارے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس کا کام ہے وہ کرے. وہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل پہلے حل ہوتے تھے, بڑے مسائل بھی حل ہوتے تھے, اب وہ ٹوٹل مسائل جو ہے وہ تھانے آ رہے ہیں اور پولیس ان کا جو ہے وہ اس کے مطابق کر رہی ہے. سر کیا میسیج دینا چاہیں گے عوام کو جو مطلب آپ کو ایک پورے ایریے کے ڈی ایس پی؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علاقے کی سطح پر امن کمیٹی, مصالحت کمیٹی کو فعال کیا ہوا ہے, ہم لوگوں کے پاس بھیج بھی رہے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملات چھوٹے ادھر حل ہو جائیں, لوگوں کو مصالحت کمیٹی پر بھی اعتماد ہو, پولیس پر بھی, تاکہ یہ معاملات حل ہوں. سر کیا دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں جس طریقے سے پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر چکی ہے, ایک جو کہ ابھی مفرور ہے اس کو بھی انشاءاللہ مطلب گرفتار کر لیا جائے گا, تو کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ واقعی سزا ملے گی؟ بالکل معاشرے میں نہیں, اس میں جو ہے نا کوئی ایسی نہیں, سب شہادتیں اس کیس میں مضبوط ہیں اور ہر چیز جو برآمدی ہو چکی ہے اس میں جو ہے نا اس میں سزا ہی ہوگی. جی تو ناظرین آپ نے سنی ڈی ایس پی صاحب کی باتیں جو کہ کافی پر امید اور پر یقین نظر آئے. تو یہاں میں ان کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے روہی ٹی وی کو وقت دیا. تو میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہوں گا کہ خدا را مطلب کسی بھی انتہا پر جانے سے پہلے آپ ایک دفعہ یہ جو ادارے ہیں یہ آپ کے لیے بنائے گئے, ایک دفعہ نوک ضرور کریں, اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ نوکنگ آپ کی نہیں سنی جاتی تو اس افسر سے اوپر افسر ہے وہاں جا کے نوک کریں, لیکن کسی بھی ایک انتہائی قدم سے گریز کریں. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو, اس پاک سرزمین کو امن کا, خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے, اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نے کہا.